اور صرف وہ اتنا کہوں گا, مستقیم ڈگنیٹی صاحب نے کہا کہ مردوں پر بھی لازم ہے کہ گھروں سے بڑی تعداد میں نکل کر کے ووٹ دیں. جی, تو میں آپ سے صرف وہ اتنا کہوں کہ پہنچ کر گھر میں دروازے پہ دستک جب بھی دیتا ہوں, غلط ہی کیوں نکلتا ہے ہمیشہ میرا اندازہ, میرے منہ سے نکلتا ہے ہمیشہ نام بیٹے کا, مگر بیٹی ہی اٹھ کر کھولتی ہے گھر کا دروازہ. آپ کی بھرپور تالیوں میں ایم ایل اے شان ہند. جناب صدر صاحب اور ساتھیوں, آج اس جلسے کی شروعات سب سے پہلے ایک سستی شہرت پانے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے نتیش رانے کے خلاف مذمت کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں, جس نے مالیگاؤں شہر کے ساتھ ساتھ پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ 23 تاریخ کے نتیجے کے بعد مہاراشٹر کی مساجد سے اسپیکر اتار لیا جائے گا. اس نامراد اور بےہودہ آدمی کے خلاف مذمت کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کی ابتدا کر رہی ہوں, جس کا جواب سب سے پہلے ابو عاصم اعظمی صاحب نے کہا. یہ ہندوستان دستور پہ چلتا ہے, دستور پہ چلتا ہے, اور دستور نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم مسجد بھی تعمیر کریں گے, وہاں اسپیکر بھی لگائیں گے, اور وہاں سے اذان بھی ہوگی, اور ہم نماز بھی پڑھیں گے. کسی دو کوڑی کے سستے لیڈر کی حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کی اقلیت پر نشانہ کرے صرف اس لیے کہ اس کو ووٹ چاہیے. اور یہ سب جو لوگ ہیں نا, چھوٹے چھوٹے لوگ, وہ اس لیے اتنی ہمت پاتے ہیں کہ تمہاری قوم میں میر جعفر اور میر قاسم ہے. آج جو بی جے پی کی دلالی کرنے والے دو امیدوار تمہارے سامنے کھڑے ہیں نا, جو ایک اجیت پوار کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جو ندی کے اس پار اور شندے ہندوتو کے نام کی حکومت بنایا. ان دو اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسے دو توڑی کے لوگ نشانہ کرتے ہیں اقلیت کو, اور اتنی ہمت کرتے ہیں کہ وہ یہ بول پائے کہ مسجدوں سے وہ اسپیکر اتار لیں گے. لیکن ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دستور, یہ ہمارا دستور کا پریمبل ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری مسجدیں بھی قائم ہوں گی, ہماری مسجدوں پہ اسپیکر بھی لگیں گے, وہاں اذان بھی ہوگی, اور کوئی طاقت اس جمہوریت کو روک نہیں سکتی. اور یہ طاقت کو بتایا کس نے ہندوستان میں معلوم ہے؟ اتر پردیش نے بتایا, وہ ایودھیا نے بتایا, جہاں پہ رام مندر بنا کر بی جے پی پوری ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ اب ہندوتو راج آئے گا. وہاں وہ نیتا جی ملائم سنگھ کے لڑکے اکھلیش یادو نے اپنی طاقت بتائی اور ایودھیا ان کو ہرا دیا. ایودھیا ہارنے کے بعد اتنا ڈر ہو گیا بی جے پی والوں کو کہ 10 جگہ کے الیکشن اتر پردیش میں ہونے والے تھے, لیکن صرف 9 جگہ کے ہو رہے ہیں. اتر پردیش کے دوبارہ ایودھیا ہارنے کے ڈر سے الیکشن آگے بڑھا دیا. یہ ڈر ہے اتر بھارتیوں کا پورے ہندوستان کی بی جے پی پہ. آج میں اس علاقے میں کھڑی ہوں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو اتر بھارت سے آئے ہوئے ہیں. ہم بھی وہی ہیں جو سالوں پہلے آئے ہیں. 1857 میں ہمارے دادا پر دادا مالیگاؤں میں آئے, اس وقت جب یو پی میں قحط پڑا تھا, اور جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے آباد تھے گرنا ندی کے پاس, مطلب سنگمیشور کے ایریے میں, اور پھر دھیرے دھیرے شہر بڑا. پہلے ایسا تھا کہ لوگ آباد ہو کے آتے تھے تو ندی کے کنارے رکتے تھے کہ وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے.
इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहां आकर रुका। मैं जब आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहां के साथी निहाल अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद की दुआई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ रहते। तो वहां शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहां की औरतों ने कहा कि हम लोग इस बात पर खुश हैं कि तुम उम्मीदवारी कर रही हो बेटा मालेगांव में, और हम यहाँ उत्तर प्रदेश से तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें मेरे लिए वहां दुआ कर रही हैं, इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है। तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया, बनाया और एक पहचान दी, उसकी बेटी जब यहाँ लड़ेगी तो क्या माएं, बहनें, नौजवान और इस शहर के बुजुर्ग मेरा साथ नहीं देंगे? क्या मुझे यकीन है देंगे। और मैं देख रही हूँ जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है। मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां से फुर्र हो चुके हैं। अब कुछ नहीं है, अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, तुम्हारे इतराफ में फार्मेसी कॉलेज का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है। और इस जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ वहां मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं मजहब के नाम पे, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इक़्तिदार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है न केस करने की हिम्मत है। इतने बहादुर है वो लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके को बिला वजह बदनाम किया गया, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर में अगर कोई भी वाकया होता है तो यहाँ पर चेकिंग होती है, नाकाबंदी होती है, घर घर पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं। और इस परेशानी से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है, वो जो खामोश रहते हैं, उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शान हिंद ही रोक सकती है। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है? तुमको नहीं मालूम है कि शहर में सट्टा, जुआ, नशा, गैर कानूनी कारोबार कौन करता है? उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अब निहाली और समाजवादी साथ में है, ये याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम नहीं करती। निहाल साहब हमेशा गुंडेवार कानून के लिए लड़ा करते थे,
मैं आज वो कानून बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया, तो तुम्हारे घरों के जो आज 7/12 के उतारे नहीं है, उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना, ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले एक तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही है। लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ, ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा, तुम क्या समझते हो, यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो। जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो लोग यहाँ से देहातों में रिक्शे वाले जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं टैक्सी में, जो स्टूडेंट आते जाते हैं, जो टीचर आते जाते हैं, और जो लोग यहाँ से चाहे नदवा जाते हो, चाहे कचौचा जाते हो, चाहे वो बाराबंकी जाते हो, चाहे रायबरेली जाते हो, चाहे अम्बेडकर नगर जाते हो, चाहे वो मऊ जाते हो, ये लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे मालेगांव के लीडरान की है। तुम जिस तरह की यहाँ सियासत कर रहे हो ना, इसकी वजह से आने जाने वालों को कहीं मॉब लिंचिंग का सामना न करना पड़े, इस बात का ख्याल रखो। मजहब के नाम पे सियासत मत करो। मजहब के नाम पे सियासत करना मतलब मुसलमानों का इस्तेहसाल करना है। हमको संविधान की बात करना है, हमको उस संविधान की बात करना है जिसकी रोशनी में हमने अयोध्या हरा दिया बीजेपी वालों को। आज इस बात को समझ लो कि हमको दस्तूर के साथ रहना है। दस्तूर ने हमको इजाजत दी है हर तरह की मजहबी आजादी की, हमको आजादी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बकरीद के पहले दिन कुर्बानी मत करना, हमको हक दिया है, हम कुर्बानी करेंगे। हमको दस्तूर ने हक दिया है, हम पहले दिन अफजल है, हम कुर्बानी करेंगे। हम पुलिस की दलाली नहीं करते कि मजहबी फर्ज करने के लिए मना कर दे। हमको हक मिला है और हक को जानने के लिए तालीम का होना जरूरी है। ये इलाका जो है वो इंतहाई पसमानदा है। मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी कौम की अगर तरक्की चाहिए तो उसके लिए सेहत, तालीम और उसकी माली तौर पर मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर तुमको कारोबार मिलेगा तो तुम माली तौर पर मुस्तहकम होगे। कारोबार मिलने के लिए आज जो हमारी पावर लूम की सनत परेशान है, अखिलेश भैया आए थे, यहाँ बोल कर गए थे कि बुनकरों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में फिक्स बिजली का भी कानून बनाया था। और ये देख लो जो हालात है ना हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जो हमेशा पलटते रहते हैं, बहुत जल्दी पलटेंगे और फिर अखिलेश यादव लीडर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में पावर लूम की अच्छी पॉलिसी के लिए एक कानून उनके पास से हम जाएंगे मांगने के लिए। न सिर्फ ये, बल्कि जो लोग पावर लूम के अलावा किसी प्रोजेक्ट, किसी MIDC में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां मजदूरी करके काम कर पाए, हम वो कानून, वो प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में लाएंगे ताकि जो बंबई, पूना, यहाँ के नौजवान और लोग मजदूरी चलकरंगी जाते हैं और अपने घर वालों की मैयत में नहीं आ पाते और उनके लिए मैयत सारी सारी रात रुकी रहती है, वो नौबत हमारे ऊपर ना आए, ये मैं कोशिश करूंगी। जो लोग तालीम के लिए, महंगी फीस के लिए अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पाते, उस प्राइमरी तालीम के लिए बेहतर इंतजाम करूंगी। वो तो मेरा टारगेट है, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है ये वो खानदान के नशे का अड्डा। प्राइमरी स्कूल अगर बन जाए सही तरीके से, उसकी हिफाजत हो, तो एक बड़ा कारोबार नशे, सट्टे और जुए का उनका बंद हो जाएगा। और वो मैं बंद करवाऊंगी ताकि हमारी कौम की, हमारी नस्लों की हिफाजत हो पाए। मैं आज इस इलाके में घूम रही थी, आजमपुरा में और हसनपुरा में, वहां पे मैं समझ रही थी सड़क इतनी खराब। और अभी आमीन भाई तकरीर कर रहे थे, रिजवान भाई, उन्होंने बोला
کہ बारिश में गटर का पानी सड़कों पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं, बारिश तो दूर की बात, जुम्मे के दिन जब घर के सब लोग नहाते हैं तो गटर का पानी रोड पर आता है, ये मुश्किल है। और अगर जो लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, जो मेयर रहे हैं, वो तुम्हारे घरों पर आए ना वोट मांगने के लिए, तो उनको बता दो कि तुमने ऐसा काम किया है कि बारिश तो दूर की बात है, जुम्मे के दिन गटर का पानी बहता है और ये गिलासत लगाकर हम हमारी मस्जिदों में जाते हैं और हम हमारे घरों में जाते हैं। हमारा निस्फ ईमान तो तुमने यही खराब कर दिया। मालेगांव शहर में औरतों के रोजगार के लिए मैं मुसलसल देख रही हूँ, एक अकेले आदमी से घर का रोजगार, घर चलाना मुश्किल होता है। खवातीन कहीं गोंद चुनती हैं, कहीं इमली फोड़ती हैं, कहीं नक ताकती हैं, कहीं पोत फुराती है, कहीं टोपियां बनाती हैं। अगर इनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिससे घर बैठे औरतें रोजगार हासिल करेंगी, वो पॉलिसी लाने की मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि घर बैठे औरतें जितनी मेहनत उतनी उनको तनख्वाह, वैसा काम लाने की कोशिश करूंगी ताकि इज्जत से अपनी औलाद को पाल सके। मालेगांव शहर में जो तहफ्फुज का मसला है, नशे का इतना बड़ा जाल फैल गया है कि लोग, औरतें अपने घर से बाहर निकलने को डरती है। धीरे धीरे जब ये जाल बढ़ेगा तो समझ लो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जो मर्द पगार लेके अपने घर जुमेरात को आते हैं, उनको कहीं ब्लेड न मार दिया जाए, उनसे पैसे न छीन लिए जाए। जो कारखानेदार पगार लेकर कारखानों में पहुंचते हैं, जो मजदूर पगार लेकर घरों तक पहुंचते हैं, जो लोग बैंक तक जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए इस नशे की लानत लाने वाले और इनको रोक नहीं पाया जो एमएलए ने, उस दोनों का और ये नशे की लानत का खात्मा करने के लिए आप मेरा साथ दो, ताकि बहन बेटी और नौजवानों की इज्जत और जान इस शहर में महफूज रहे। मालेगांव शहर में इस इलाके में मैंने ये मालूम किया कि नाकारा एमएलए, वो नाकारा एमएलए जिसको नदी के इस पार बैंकें और ऑफिसर्स लाना था, वो लाना तो दूर की बात, जो बैंकें थी वो भी उधर चली गई। लंबी लंबी लाइन खवातीन ने केवाईसी के नाम पर रात रात भर वहां गुजारी। और ये इलाका जो है, ये अपना पैसा जो कमाता है वो अपने देश, अपने गांव उत्तर प्रदेश में भेजता है, लेकिन करीब में कोई बैंक का यहाँ ब्रांच नहीं है, तो उनको प्राइवेट लोगों को भेजना पड़ता है, जो 10,000 रुपए पे भी उनसे फीस लगती है। ये नौबत ना है, इसलिए आपके इलाके में बैंक की ब्रांच, ताकि आप अपने घर वालों को, देश वालों को, गांव वालों को आराम से पैसा भेज पाओ, ये सहूलत मैं करके दूंगी, ये वादा करती हूँ आपसे। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं, चाहे वो यूपी के हो, चाहे मराठवाड़े के हो, चाहे खानदेश के हो, ये किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और किराया देना और घर की कफालत करना ये इनके लिए मुश्किल है। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने बस्तियां बसाई और फ्री में लोगों को घर का मालिक बनाया, हाथ परचेज से उनको जमीनें दी, इसी तरह एक ऐसा कानून और एक जगह मुख्तस करके जो लोग भाड़े के घरों में रहते हैं उनको घर का मालिक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर का अमन, चाहे वो लकड़ी वाले हो, चाहे लोहे वाले हो, चाहे वो साबुन वाले हो, चाहे कारखाने का मजदूर हो या कारखानेदार हो, गठनी जोड़ने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, इन सब की हिफाजत और बेहतर रोजगार और इनकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप और मेरा वादा, और वो 15 साल इक्तदार किए हुए झूठे खानदान का वादा, और एक जो कसम खा के सियासत में आए थे उनके वादे में फर्क है। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, निहाल अहमद का खून हूँ, निहाल अहमद का आपने सियासत देखी है, निहाल अहमद का रुतबा आपने देखा है, निहाल अहमद का वजन आपने देखा है। जब निहाल अहमद की लड़की खड़ी होकर बोल रही है ना कि मुझे एक मौका दो,
तो मेरे ऊपर ये 5 साल का वजन नहीं है मेरे कांधों पे, वो 30 साल का वजन है जो मेरे बाप ने रोशन गुजारा है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मेरे 5 साल के साथ साथ वो 30 साल को भी मैं रोशन करूं। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं वही बोलूंगी। आपके करीब जो हॉस्पिटल है, और जो एक हॉस्पिटल औरतों के लिए और बच्चों के लिए था, और वो एक नाहिल नाकारा आदमी की रहनुमाई की वजह से, दलाली की वजह से दादापू से लेकर चला गया, वैसा अच्छा हॉस्पिटल, ताकि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अपनी सेहत के लिए इधर उधर न जाना पड़े, इस शहर में उनका बेहतर इलाज हो, इसकी कोशिश मैं करूंगी। आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि देखो, पक्के इलाकों में भी तुम हो समाजवादी निहालियों, कच्चे इलाकों में भी तुम हो समाजवादी निहालियों, और जो पूरब से पश्चिम तक के उत्तर भारतीय, इसमें सिर्फ तुम हो। ये समझ लो, तुमसे बड़ी ताकत मालेगांव में कोई उम्मीदवार की नहीं है। कहीं मुफ्ती साहब हैं तो वहाँ आसिफ नहीं, तुम लड़ रहे उनसे। कहीं आसिफ है तो मुफ्ती साहब नहीं, तुम लड़ रहे। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे मुकाबले में। इसलिए ये जो ताकत है ना उत्तर भारतीयों की, सिर्फ समाजवादी के साथ 35 से 40 हजार वोट, ये तो हमारी ये पार्टी वोट है। और जो न्यायाल अहमद साहब की वोट है वो अलग। आपसे मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह अयोध्या में फिरका परस्तों को तुमने सर कुचल दिया, उसी तरह जो फिरका परस्त मीर जाफर, मीर कासिम मालेगांव में आए हैं, उनका भी सर कुचल दो समाजवादियों, और हमारे दस्तूरी झंडे समाजवादी पार्टी के, इसको लहरा दो मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरी निशानी साइकिल, वो साइकिल जो बुलडोजर पे चढ़ चुकी है, वो साइकिल है हमारी। और हमको यहाँ इक़्तिदार करना है। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं शहर में राज करने नहीं आई, मैं दिलों पर राज करने आई हूँ तुम्हारे, जैसा निहाल अहमद ने राज किया था। मैं ये उम्मीद से कि मेरी माए बहनें, नौजवान और बुजुर्ग आने वाले इलेक्शन के 20 तारीख के दिन इस तरह लड़ेंगे कि वो खुद शान हिंद है।